It's my great privilege to introduce our guest speaker, Shri V. Bhupendra Singh Ji. Shri V. Bhupendra Singh Ji, a civil engineer himself, is trying his best to make us aware of his abundant treasure of life lying within us and also using it at an appropriate time to nullify the sadistic, depressed, and aggressive state of mind. He conducts mind balancing seminars, lectures, discourse, and one to one dialogue with the people of all age groups at various schools, colleges, and gatherings, not only in India but around the globe. His simple approach to negotiate the problem of any kind of magnitude makes easier for every person to gather enough strength to solve the same without stressing oneself. With his vast experience after having met so many people listening to their problems, and then the universal truth that is Gurbani has become his passion. He has authored a number of books of varieties of subjects of common interest in Punjabi, Hindi, and English. Most of his lectures are available in the form of audio series, MP3, and also on the websites of the Living Treasure. His programs are telecasted daily on Z Punjabi channel. Now, it's our great pleasure to listen Shri Veer Bhupendra Singh Ji talking on value system and success. So I would welcome Sir for the dayas. I know for all of us, I speak for one and all in this room, truth is very important. Being truthful is very important. And as some of you will realize, that our holy book, after Mool Mantra, starts with the importance of truth. When we say, Aad Sach, Jugad Sach, Hai Bhi Sach, Nanak Hosi Bhi Sach. So truth is the essence of life. And Gurbani keeps on challenging us, Odak Sach Rahi. Truth is what will remain with you. But my dilemma is something beyond that. I'm very small, I'm a scientist, I'm not a religious person or something, but my dilemma remains when Guru Nanak says, Sache upar sabko upar sach achar. It's good to be truthful, it's easy to be truthful, but living a truthful life and setting up an example of what Guru Nanak said, Grasti Sadhu, be truthful, be ethical, and yet be successful. That has been dilemma for us, most of the human beings. We are taught many things in life. We know, but when it comes to practicality, most of us forget what they are. We believe in getting things done through Sam, Dam, Dand, Ved as is told. And we are overtaken at times by five vices, Kam, Krodh, Lobh, Ahankar. But at the heart of it, all of us want to remain truthful, want to contribute in an ethical way. This is where, honestly, Virji, I look for your guidance today, to enlighten all of us how to be truthful and yet be successful in the present context. So that will be my submission. Honorable Dean Dr. Rajesh Bhalla ji and Dr. LP Singh ji, along with the staff and all students over here, including my friends from Living Treasure Management Group. Namaskar. अस्सलाम वालेकुम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपके यहाँ पर आके मुझे मालूम हुआ कि आपका इंस्टीट्यूट का पर्पस क्या है। जो डॉक्टर LP सिंह जी ने मुझे ब्रीफ बताया ऑफिस में बैठ के और यहाँ पर भी, वो सबको सुनने के बाद एथिक्स एंड वैल्यूज़ के ऊपर आपसे डिस्कस करना है, और अभी इन्होंने मेरे को उसके ऊपर एक और सब्जेक्ट बना दिया, ट्रूथ। किस चीज़ का नाम ट्रूथ रखेंगे? जो हमारे पास मशीनरी है, वो मशीनरी का जो प्रिंसिपल पे वो मशीनरी बनी है, उसके जो पार्ट्स हैं सारे अपना अपना काम करते हैं, इसका नाम हम ट्रूथ रख लें? या जो हमने थ्योरी पढ़ी है उस थ्योरी को प्रैक्टिकल शेप में करना, इसका नाम ट्रूथ रख लें?
या किसी से पूछें बच्चे बताओ 2 और 2 कितना होता है, वो बोले 4, इसका नाम ट्रुथ रखें। ऐसे तो अनलिमिटेड पॉइंट्स बन जाएंगे, किसका नाम हमें ट्रुथ रखना है? What I am supposed to live on. जो सेइंग डॉक्टर साहब ने बोली है, जो कोट है गुरु ग्रंथ साहब में गुरबानी का, सच्चो और है सबको ऊपर सच आचार, इसका वाइडली नोन जो मीनिंग है दैट इज जो सच है उससे सब कुछ नीचे है और उस सच से ऊपर सच्चा जीवन है। सपोज ये सच है और ये सच को मैं सुनता हूँ और इसको सुन के सच के जो ऊपर मेरा प्रैक्टिकल जीवन बनेगा, वे मेरे उस आचरण को सच बोलते हैं एज पर दिस कोट। मुझे कुछ और इसमें से महसूस हो रहा है। फर्ज करो ये सच है, ये लाइन है जिसको हम सच बोल रहे हैं, और अगर ये मीनिंग मैं समझूं कि सच के ऊपर मेरा कैरेक्टर है तो मैं सच से ऊपर हो गया। ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता। सच तो हमेशा ऊपर रहेगा। तो मुझे इसके मीनिंग्स ऐसे महसूस हो रहे हैं कि सच को लेने से, जो सच है, सच को लेने से, सच्चो उरे सबको, इससे इधर जो कोई भी है सबको, ये उरे इधर नहीं है। उरे का मतलब है ओरे। ओरा होता है ओढ़ना। ओढ़ना होता है अपनी मत के ऊपर एक रोब ऑफ ऑनर, एक रोब ऑफ विजडम, एक चोला पहनना। सच्चो ओर है सबको। जब कोई अपनी मत के ऊपर, अपनी अक्ल के ऊपर सच का पहरन पहनता है तो उसका जीवन ऊंचा बन जाता है, उसका कैरेक्टर ऊंचा बन जाता है। अब यहाँ मैं आज आपको गुरबानी के ऊपर लेक्चर देने नहीं आया हूँ। दिस इज़ नॉट रिलीजियस प्रोग्राम। वी आर टॉकिंग अबाउट वैल्यूज़, एथिक्स। किस लिए? इन्होंने आगे लिखा है मेरे को कि सक्सेसफुल लाइफ। व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस इसको नहीं बोलते हैं कि मैंने डिग्री ले ली और मेरे 99% मार्क्स आए, उसके बाद मैं कंपटीशन से एक कॉर्पोरेट सेक्टर में पहुंच गया और आस्ता आस्ता मैं CEO बन गया। इसको सक्सेस नहीं बोलते हैं, ये वर्ल्डली सक्सेस है। सो रियल सक्सेस कहाँ होगी, कैसे आएगी? रियल सक्सेस तो जब मेरी जर्नी शुरू हुई, स्टार्ट हो गई, लेकिन जैसे ही वो स्टार्ट हुई मैंने कुछ एक्यूमुलेट करना शुरू किया जो मेरे टाइटैनिक, मेरे शिप में वजन बढ़ाता जाएगा और मेरा टाइटैनिक कभी भी कहीं भी डूब सकता है, क्योंकि वो सारी हैं डेफिशिएंसीज और फ्लॉज जो मैंने चारों तरफ से इकट्ठे करने हैं। अब ये सारे मुझको ट्रूथफुल लिविंग जीने में हर्डल बनेंगे। मेरी लाइफ का जो ओशन है उसमें चलते हुए मुझे रुकावट बनेंगे। इसलिए कबीर जी हमको बोलते हैं, कबीर बेड़ा जर जरा। मेरा जो टाइटैनिक है इसमें अनेकों छेद है, मेरे फ्लॉज के, मेरी शॉर्ट कमिंग्स के। हरुए तिर गए, जो आस्ता आस्ता अपने बेड़े को पैचअप करता है और पैचअप करके अपने उसको आस्ता आस्ता बचा के सारे स्टॉर्म से लास्ट तक अपने डेस्टिनेशन तक ले जाता है। हरुए तिर गए,
वो कामयाब हो जाता है। और कौन कामयाब नहीं होता? डूबे जिनसिर भार, जिसने अपने टाइटैनिक में अपने फ्लॉज का, अपने अवगुणों का भार रखा, वो डूब जाता है। अब ये इंडिविजुअल पे डिपेंड है कि वो क्या करना चाहता है। भार के साथ अपने शिप को डुबोना है या बचा बचा के लेके जाना है। आई थिंक दिस इज द रियल मैनेजमेंट वी हैव टू लर्न। इस मैनेजमेंट को लर्न करने के लिए सबसे पहले हमारे सामने माँ है। माँ सब्जेक्ट के ऊपर मैं जितनी मर्जी PhDs कर लूँ, जितने मर्जी बुक्स लिख लूँ, मेरा माँ सब्जेक्ट ख़त्म नहीं होता। माँ जो आज इंस्टीट्यूट में पढ़ रही है, उसके अलावा एक पुरानी माँ जो अनपढ़ थी, जिसके पास फ्रिज नहीं था और गैस का चूल्हा नहीं था, वो माँ बच्चे पैदा करके सारा घर मैनेज करती थी। वो मैनेजमेंट कहाँ से आई? वो थियोटिकल मैनेजमेंट नहीं है, वो 100% प्रैक्टिकल लिविंग की मैनेजमेंट है। तो मैं माँ को फोकस कर रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट पे कि माँ अपना सारा जो मैनेजमेंट के लिए स्ट्रेस लेती है, वो स्ट्रेस उसका पैशन है। स्ट्रेस वर्ड आज नेगेटिव लिया जाता है, स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है, हमारे ऊपर स्ट्रेस बहुत है। लेकिन माँ उस टाइम वो स्ट्रेस लेती थी और उसका स्ट्रेस क्रिएटिव था, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक। इस स्ट्रेस में उसको अपनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, इस स्ट्रेस में उसको अपनी सेहत के अलावा अपनी नींद का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। शी इज़ प्रिपेयर्ड। इस मैनेजमेंट में उसको अपने आप से, अपने पति, अपने इन लॉज और बच्चों को भी देखना पड़ता है। शी इज़ प्रिपेयर्ड। ये स्ट्रेस वो लेने को तैयार है, लेती ही है। इसके अलावा जो घर में मेहमान आएंगे उनकी देखभाल करना और आवभगत करना, ये भी ड्यूटी उसने अपने सिर ली हुई है। माँ उस टाइम भी ले लेती थी, फ्रिज नहीं था। ये मैनेजमेंट वो कैसे सीखी है? मैं इसको कंक्लूड कर लूँ कि मुझे ये समझ में आया, शी हैड वन क्वालिटी विच इज़ कॉल्ड अल्ट्रुइज्म, और आई में से अनलिमिटेड टेंडरनेस है उसके पास। टेंडरनेस को मैं ऐसे समझता हूँ कि माँ जैसे बिल्ली अपने दांतों से ही चूहे को पकड़ के खा जाती है, लेकिन बिल्ली इन्हीं दांतों से अपने बच्चे को बड़ी कोमलता से उठा लेती है मुंह से पकड़ के, लेकिन उसके पास एक टेंडरनेस है। जैसे कोमलता से उठाती है, उसके बच्चे को कुछ भी नहीं होता। ये टेंडरनेस आज मुझे अभी अभी ये समझ में आया, जो ये सच की बात पूछ रहे हैं कि सच्चा जीवन क्या होता है। आई थिंक दैट इज टेंडरनेस विच कैन हेल्प मी टू बी ए बीइंग ऑफ अल्ट्रुइज्म। ये माँ के पास था, माँ के पास है। अगर आज की माँ के पास फ्रिज है तो उसको इतनी दूर जाके कहीं से गाय भैंस का दूध लाने के लिए या घर में गाय भैंस को दूध निकालने के लिए टाइम नहीं लगाना पड़ रहा। रेडी मिल्क इज़ अवेलेबल इन द फ्रिज। इसके अलावा उसके पास सब्जी आज फ्रिज में है। ये सारी बातें मैं उस मैनेजमेंट की बातें कर रहा हूँ कि वो सब कुछ ये नहीं था, फिर भी इसको मैनेज कर लेती थी। आज वाली के पास सब कुछ है, लेकिन वो मैनेज क्या कर रही है?
फेसबुक, व्हाट्सएप, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल्स, चैटिंग और बोरोइंग द फैशन, क्या स्ट्रेस लिया उसने? जो चीज़ों के ऊपर स्ट्रेस लेना था वो तो उसके पास अवेलेबल है। अब इसने बिल्कुल एक स्ट्रेस आज वाली ने ले लिया जिसको बोलते हैं नकारात्मक, डिस्ट्रक्टिव। माँ के कैरेक्टर को मैं स्विच करता हूँ सबके लिए, डजेंट मैटर आप कौन से जेंडर के हैं। जब तक ये अल्ट्रुइज्म नहीं आएगा, जब तक ये टेंडरनेस नहीं आएगी, हम ये मैनेजमेंट थियोरेटिकली पढ़ लेंगे। और मुझको लगता है ये जो इन्होंने हेल्थ मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट खोला है, इसके पीछे भी इंटेंशन तो यही है लोग सुखी हो जाएं, लोगों को मैक्सिमम हेल्थ के और हॉस्पिटल्स के सिस्टम्स में हेल्प हो सके। एम आई राइट? राइट। अब बिकॉज आई वॉज सिविल इंजीनियर, मुझे एक अचानक बात याद आई। जो आपको थ्योरी पढ़ाई जा रही है मुझे भी पढ़ाई गई। ऐसे एक इंजीनियर था, उसे पढ़ाई गई, उसे बोला गया एवरेज कैसे नापते हैं। एवरेज ऐसे नापते हैं, अगर आपने एक नाले की गहराई नापनी है, आप उसमें कितना पानी निकल सकता है नापने के लिए, उसकी इरिगेशन के लिए और उसकी लाइनिंग के लिए, उसकी जो वहाँ पर आपने पत्थर लगाने हैं वो सब के लिए आपको उसकी गहराई नापनी होगी। तो उसमें नापने के लिए एवरेज पहले देख लें। तो क्या किया, अगर 10 फीट पे उसने अपना डंडा लगाया और उसको नाप लिया, फिर 8 फीट पे नाप लिया, फिर जहाँ 6 फुट था वहाँ नाप लिया, और फिर जहाँ 4 फुट था वहाँ नाप लिया। तो इसने अब क्या किया, इसने गहराई नाप ली। एवरेज क्या होती है? 10 + 8 + 6 + 4 एंड डिवाइड बाई 4, राइट? ऐसे ही हम एवरेज निकालते हैं ना। तो उसका एवरेज निकालने का सिस्टम तो उसे समझ में आ गया, और जैसे आजकल बाढ़ आ रही है बारिश के कारण, ऐसे उसने अपने परिवार को झुग्गी में डूबते देखा और सारे परिवार को बोला आओ चलते हैं। परिवार में सबसे छोटा बच्चा 1.5 फुट का था हाइट में, और एक 4 फुट का था, और वाइफ उसकी 5 फुट की थी, माँ उसकी 5.5 फुट की थी, आप उसका कद 6 फुट का था, और पिता भी उसका 6 फुट का था। अब इसने सबकी हाइट नापी हुई है, और जब ये जाने लगा, इसको पता लगा यहाँ आगे पानी ज़्यादा है, इसने वहाँ पर डंडा लगाया और एवरेज नाप ली। नापने के बाद इसको मिला कि जो 1-1.5 फुट वाला है उसको अगर हम गोदी में उठा लें तो एवरेज निकल रही है 4 फुट की गहराई, जबकि कहीं पर 10 भी थी, कहीं पर 6 भी थी, कहीं पर 8 भी थी। तो इसने कहा 4 फुट का है एवरेज, आओ सब निकल जाएंगे। 1.5 फुट के बच्चे को गोद में उठा लिया और सारे डूब गए, डूबेंगे ही, बिकॉज ही इज यूजिंग द थ्योरी कि एवरेज कैसे निकालते हैं, और उस थ्योरी को उसको इम्प्लीमेंट करना आया, लेकिन रॉन्ग। और उस टाइम ये सेइंग बन गई, थ्योरी मीन्स हिसाब मेरा ज्यों का त्यों और टब्बर मेरा डुब्बा क्यों। अब पुराने ज़माने के डॉक्टर और हेल्थ सिस्टम से लेके आज का डॉक्टर और हेल्थ सिस्टम और नर्सिस और जितनी भी मेडिकल की नई से नई मशीनें हैं, सब कुछ के बाद भी आज टब्बर डूब क्यों रहा है? आज मरीज़ फिर भी ट्रबल में क्यों है? आज इतने ज़ोरदार इंस्टीट्यूट्स बन गए हैं जिसमें लोग पीएचडी और इतने बड़े बड़े अपनी पूरी ज़िंदगी पढ़ाई करा के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, फिर भी मैनेजमेंट हो जाती है, पर वो टब्बर डुब्बा क्यों होता है? So I realized this time, for the last more than 3 weeks, I was in ICU with my mother in New York. उनका गॉल ब्लैडर रिमूव होना था, और वहाँ पर मुझे ये बात समझ में आई, वो इंग्लिश नहीं बोल सकते, इसलिए
वहाँ पर आईसीयू में चाहे किसी को अलाउ नहीं करते हैं, हमको अलाउ किया गया ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कि नर्सिस और डॉक्टर के साथ हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे मेरी मदर क्या कहना चाहती है और डॉक्टर नर्स उसको क्या कहना चाहते हैं। ये सिस्टम कहाँ पढ़ाया जाएगा? ये डॉक्टर एलपी सिंह जी, आई थिंक दिस इज नॉट इन द सिलेबस एनीवेयर, एम आई राइट? थैंक यू। वहाँ मैंने नोटिस किया कि मेरी मदर जो कुछ भी बोलती है वो नर्स को और डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा, और जो डॉक्टर और नर्स बोलते हैं वो उनको समझ में नहीं आ रहा। अल्टीमेटली हु इज सफरर, माय मदर और मैनेजमेंट डॉक्टर नर्स? मदर, मरीज, राइट? ये जितना सिस्टम बनाया जाएगा किसके लिए बनाया जाएगा? मरीज के लिए या मैनेजमेंट के लिए या डॉक्टरों की ऊंची तनख्वाह के लिए या रिसर्च वाली बढ़िया मशीनों से इकॉनमी को ऊंचा करने के लिए? दिस और द पेशेंट? पेशेंट, थैंक यू। सो सारी बात पेशेंट के ऊपर आती है और पेशेंट को देखते हुए हमारा वहाँ पर अल्ट्रुइज्म और हमारी टेंडरनेस काम आएगी। इसका मतलब जितनी क्रिएटिविटी होगी वो उस मदर की तरह जो मदर घर में क्रिएटिव काम करती थी विदाउट एनी फ्रिज और विदाउट एनी फैसिलिटीज अवेलेबल इन द हैंड। सकारात्मक स्ट्रेस लेके वो क्रिएटिव थी, उसको कर्ता पुरुष बोलते हैं। कर्ता पुरुष होता है गॉड। हम कर्ता पुरुष अपनी लाइफ में बन सकते हैं। अगर एक पिता स्ट्रेस लेता है तो वो खेती बाड़ी करने जाता है और परिवार को पालता है। जितना वो स्ट्रेस लेता है उतनी खेती बाड़ी ज़्यादा बढ़िया करता है, चाहे धूप है, चाहे गर्मी है, चाहे कुछ भी वो करते हैं। या फिर वो नौकरी और बिजनेस के लिए जाता है और जितनी मेहनत कर कर के लाता है उससे उसका परिवार सुखी हो जाता है और आप पिता भी सुखी हो जाता है। लेकिन अगर पिता ये स्ट्रेस ना ले तो आप भी दुखी रहेगा, पूरा परिवार भी दुखी रहेगा। पर मदर का सकारात्मक स्ट्रेस लेना वर्सेस पिता का सकारात्मक स्ट्रेस लेना में फ़र्क पड़ गया। इसलिए लगता है कि मदर के साथ बच्चे ज़्यादा अटैच्ड होते हैं वर्ल्ड वाइड। अब अगर मदर के साथ हम ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, मदर इज़ नेक्स्ट टू गॉड ऑन दिस अर्थ, तो हम मदर से ये वाली गेम सीख क्यों नहीं सकते? हमने अपनी पढ़ाई इसलिए की है कि मैं एयर कंडीशन क्यूबिक में बैठ के और ऊंची तनख्वाह ले सकूं, बस। ये जो टेंडरनेस है ना, ये टेंडरनेस उस पायलट को भी एक अकल देती है कि अगर सारे सिस्टम होते हुए भी मेरे प्लेन में कोई गड़बड़ हुई है तो मैंने सारे पैसेंजर्स को बचाना कैसे है। इसलिए वो पायलट अपनी नींद पूरी करके नशा बिल्कुल नहीं करता है और अपने आप को फ्रेश रखता है और बिल्कुल अपनी जॉब में पैशनेट होकर उसको करता है। इसका मतलब ट्रूथफुल लिविंग क्या होगी? ट्रूथफुल लिविंग होगी इफ़ यू हैव दिस टेंडरनेस एंड यू आर लिविंग अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म मीन्स तू अगर दूसरों के लिए जीता है, दैट इज़ हाइट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ये सच बताया गया और इस सच को जीना ही ऊंचा कैरेक्टर बनता है। विद्या विचारिता परोपकारी एक कोट है कि ये परोपकार है कि आप दुनिया को पढ़ा दो, ये उसके मीनिंग किए जाते हैं। पर विद्या विचारिता परोपकारी के मैंने मुझे ये समझ में आए, असली तूने पढ़ाई तब की है जब तूने दूसरों के भले के लिए जीने का जज्बा, इमोशन सीख लिया। लेकिन हुआ क्या? मुझे तो एक बीमारी लग गई, ये मेरी लाइफ है, ये मेरी लाइफ है। जब मैंने कहा तो मैं खुदगर्ज हो गया। अगर मुझे सिर्फ अपना पार्ट करना है और बाकियों की गर्दन मरोड़ के कराना है तो फिर ये मेरी लाइफ बेकार है। पर मेरी लाइफ कब से शुरू हुई है मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं सोच रहा हूँ जब मेरा करियर बन गया, मैं एक जॉब में लग गया, फाइन, मेरी पढ़ाई कामयाब हो गई। उसको करने के लिए मुझे कुछ भी झूठ बोलना पड़ता है, मैं करता हूँ। मशीन झूठ नहीं बोलती है, मैं झूठ बोल लेता हूँ, क्योंकि मुझे अपना एक स्टेटस और अपनी एक जॉब का वो कुर्सी चाहिए। तो मैं जगह जगह अपना दीन ईमान बेच देता हूँ।
तो अब जब मैंने वहाँ अपनी मदर के साथ आईसीयू में एक्सपीरियंस किया तो मैंने देखा इस टाइम उन्होंने क्या किया, जब भी वो आईवी लगाते थे हर आईवी के ऊपर एक नई टेप लगाते थे, जो नर्स आके लगाती थी उसके ऊपर अपना नाम और टाइम लिखती थी आईवी के ऊपर। लेकिन जो आईवी का ढक्कन था छोटा सा पर्पल कलर का, ब्लू कलर का, पिंक कलर का, आप सब ने देखा होगा उस ढक्कन को, वहाँ से वो इंजेक्शन लगा के अंदर मेडिसिन डाल देते हैं। आप सब जानते होंगे क्योंकि आप हेल्थ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। जब भी वो लगाती थी वो उस ढक्कन को हाथ नहीं लगाती थी। आई सॉ कि जो इंजेक्शन वो लगाती थी, मैं बहुत बारीकी से इस चीज़ को नोट कर रहा था कि मैंने तो इसको बहुत बार देखा हुआ है, पर ये आज क्या करती है, इंजेक्शन लगाने के बाद जहाँ वो अपने थंब से प्रेस करती थी वहाँ पर एक स्टिकर लगा हुआ था, स्टिकर को वो ओपन करती थी, स्टिकर के अंदर एक ढक्कन था और इस ढक्कन को वो टच नहीं करती थी और ऐसे करके यहाँ पर उल्टा रख के उसको ढक्कन को घुमाती थी, घुमाने के बाद उसको बंद कर देती थी। मैंने डॉक्टर से पूछा ये कौन सा नया सिस्टम आया है। डॉक्टर सेड रिसर्च की गई है कि ये ढक्कन के साथ नर्स जब लगाएगी, नर्स किसी भी और मरीज़ का इन्फेक्शन लेके आएगी हाथों में और वो इस मरीज़ के अंदर जा सकता है। इसलिए आई वॉज शॉक्ड, माय गॉड, कितनी बारीकी से रिसर्च की जाती है कि मरीज के अंदर इन्फेक्शन कहाँ से चला जाता है। दैट इज कॉल्ड टेंडरनेस, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रुइज्म। हम पल पल रोज रोज क्रिएटिव बन सकते हैं कि कैसे कहाँ पर किसी को नुकसान होता है। दिस इज कॉल्ड ट्रूथफुल लिविंग, दिस इज कॉल्ड सच के साथ जीना। अब अगर वो उसको नर्स वहाँ पर प्रॉपर ट्रीट ना करे तो रिसर्च और थ्योरी धरी की धरी रह गई, क्योंकि नर्स उस सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब दुनिया भर की सारे मैनेजमेंट और सिस्टम किसी एक छोटे से छोटा काम करने वाले इंसान के कारण सारा फेल हो सकता है। एम आई राइट? तो अगर छोटे से छोटे इंसान के कारण सारी थ्योरी और सिस्टम फेल हो सकते हैं, तो अब इसका मतलब ये होगा कि जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस पड़ाव पे कोई भी काम कर रहा है, अगर वो अपना काम सिंसियरली नहीं करता तो सारी रिसर्च, सारी पढ़ाई हुई मैनेजमेंट, सब कुछ ज़ीरो हो जाती है। लाइक आपने यहाँ इंडिया में भी देखा होगा कि अगर पेशेंट को रात को या कभी भी कोई ट्रबल है और पेशेंट उठ के नहीं जा सकता, नर्सिस को बुलाना चाहता है तो पेशेंट बेल करता है, राइट? कितनी छोटी सी चीज़ है। जिसने बनाई होगी वो वही वाज ग्रेट, जिसने इसकी रिसर्च की होगी कि पेशेंट नर्स को कैसे बुलाए। अब जब पेशेंट सारे एक फ्लोर पे 18 पेशेंट है, 18 के 18 बेल बजाएं, नर्स को कैसे मालूम हो? नई खोज की गई कि जिस बेड से बेल होगी वो बेड की वहाँ पर लाइट जल जाएगी, नर्स को पता लग जाएगा बेड नंबर 18 के विंडो वाली साइड के पेशेंट ने बेल की है। नर्स वहीं पर आती है ना। एंड आई एक्सपीरियंस दिस time when my mother was not well, I was next to her and I am sitting in her room at 2 o'clock midnight, और दूसरे कमरे वाली एक पेशेंट बुड्ढी बिचारी बेल कर रही है और नर्स नहीं आ रही है। बार बार उसकी बेल करने के बाद आके उसने गुस्सा किया। ट्रूथफुल लिविंग गई, रिसर्च गई, बेल और वहां पर लाइट जलने का सिस्टम गया। ऐसे हम जितनी भी मेडिकल साइंस की रिसर्च करते हैं उसमें किसी का नहीं, सबका भला के लिए की जाती है, लेकिन उसको जो इम्प्लीमेंट करता है, आपको वो इम्प्लीमेंट करने की मैनेजमेंट यहाँ पर पढ़ाई जा रही है। अगर आप उस सिस्टम को बना देते हैं और सिस्टम को आगे करने वाला नहीं करता है, तो ये सारी बातों को समझने के लिए एक जज्बा क्रिएट करना होगा मेरे को अपने अंदर, ईच इंडिविजुअल को, कि मैंने भले के लिए, दूसरों के भले के लिए अल्ट्रुइज्म वाला, टेंडरनेस वाला जीवन जीना है।
पर मैंने वो वाली स्ट्रेस ली ही नहीं। मेरा टाइम कहाँ लग गया? मेरा टाइम लग गया 1 2 3 4 आजा डांस के फ्लोर, है ना, या अपने सलीम की गली अनारकली छोड़ के चली, या समथिंग समथिंग ऐसे। इन चीज़ों में मेरा टाइम लग गया और मुझे अपने कैरेक्टर के ऊपर पूरा गर्व था। उसके साथ सिर ऊंचा करके चलने की बजाय मेरा सिर नीचा हो गया। नीचा तो हमने सुना था जो हम्बल होते हैं उनका होता है, लेकिन आज की डेट में जो बहुत ज़्यादा अपने गर्व घमंड और आकड़ में उसका सिर नीचा होता है। क्यों? क्योंकि उसने सिर नीचा करके टेक्स्ट मैसेज करना है एंड कंटिन्यूसली बिजी, सिर नीचा। अब जिसका सिर नीचा है उसको घर में साइड पे बुज़ुर्ग माता पिता नज़र नहीं आएंगे, पड़ोसी वाले नज़र नहीं आएंगे, और ऑफिस में अपने जो फेलो सिटीजन्स हैं, साथी हैं, काम करने वाले, वो नज़र नहीं आएंगे। टेंडरनेस तो गई। अब आप क्या सिस्टम बनाएंगे? आप जो भी आप सिस्टम बनाएंगे उस सिस्टम में आप जिससे भी वो काम कराना चाहेंगे, आपका काम कराने का मकसद था ताकि टाइम पर काम हो जाए और पेशेंट को हेल्प हो जाए। लेकिन जो भी उस काम में से सिस्टम को यूज़ कर रहा है वो बोल रहा है 5 मिनट ठहरो, मैं 10 मिनट में आया। इज़न्ट इट? तो आपका सिस्टम और मैनेजमेंट वहाँ धरी की धरी रह गई। तो हम वो मदर वाली टेंडरनेस और अल्ट्रुइज्म को सीख के अपना सारा सिस्टम चला सकते हैं। उसको चलाने के लिए मुझे सबसे पहली बात करनी होगी कि मैं डोमिनेट नहीं करूँगा, मैं अपना ऑर्डर कभी नहीं दूंगा। दिस इज कॉल्ड टेंडरनेस। किसी की गलती के अगेंस्ट उसकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट खराब करके उसकी प्रमोशन रोकूंगा नहीं। पॉलिटिक्स करके अपने साथी से मैं आगे जाना नहीं चाहूँगा। ये सारी बातें हमको मैनेजमेंट में कहीं भी नहीं सिखाई जाती। हम डिग्री ले लेते हैं लेकिन मेरे को ये वाली टेंडरनेस समझ नहीं आती। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियों में लोग जब भी चाहें शराब पी लेंगे, जब भी चाहें पॉलिटिक्स करके अपने आसपास वालों को ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि अल्ट्रुइज्म नहीं है, टेंडरनेस नहीं है। हर कोई अपनी कामयाबी समझ रहा है, दूसरे के ऊपर पाँव रख के आगे जाने का तरीका कैसे किया जाए। Isn't it? तो आप जब ये मैनेजमेंट सीखेंगे ना, अब इस मैनेजमेंट में सीखना ये होगा कि थ्योरी पढ़ के, सिलेबस पढ़ के मुझे दूसरों के लिए क्रिएटिव कैसे जीना है। टेक्स्ट मैसेज आता है, पति अपना फ़ोन उठाता है, फ़ोन टेक्स्ट मैसेज लिखा था, तुम्हारी पत्नी को हमने किडनैप कर लिया है, इतने लाख या इतने करोड़ रैंसम मनी फलानी जगह पहुंचा दो, नहीं तो उसको मार देंगे। सेकंड लाइन, अब से 5 मिनट के बाद इस टेक्स्ट मैसेज को पढ़ने के बाद आपका डोर नॉक होगा, कोरियर वाला आपको उसमें आपकी पत्नी की एक छोटी सी उंगली का ये पोटा इतना सा काट के दिखाएगा। कोरियर खोल के देख लेना, प्रूफ के तुम्हारी पत्नी हमारे पास है। नाउ व्हाट हैपेंड? आफ्टर 5 मिनट्स डोर नॉक हुआ, एनवेलप खोला गया, उसमें एक इतनी कटी हुई ब्लीड होती हुई उंगली थी। इसने उंगली को देखा, देखने के बाद टेक्स्ट मैसेज को रिप्लाई किया, उंगली तो किसी की भी हो सकती है, अगर रियली मेरी वाइफ तुम्हारे पास है तो उसकी मुंडी भेजो, मुंडी। मुंडी कटेगी तो मेरी भी जान छूट जाएगी और उसका भी सफाया हो जाएगा, राइट? अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब तक ये प्रॉब्लम सम वाली मुंडी हमारी नहीं कटेगी, मेरा थॉट प्रोसेस, तब तक ये हम सुख नहीं ले सकेंगे।
वरना ये मैनेजमेंट और सिस्टम और सब कुछ इतना ज़ोरदार बनता जाएगा, मरीज़ सफ़र करता रहेगा। अमेरिका वाला सिस्टम यहाँ अडॉप्ट किया जा सकता है। एक अल्ट्रुइज़म वाला मदर या फादर या इंसान उठ के हॉस्पिटल में आता है, मरीज़ को पूछता है आपका इलाज क्या ठीक हो रहा है। अगर आपको कोई कंप्लेंट है आप मुझे बताएं, आपको दवाई ठीक दी जा रही है, नर्सिस आपसे ठीक बिहेव करती हैं। हमारे में से ऐसा कोई कुछ नहीं करता है। और उनकी आवाज़ उन्होंने इतनी ऊपर तक उठा दी कि उनकी सुननी पड़ती है। आपकी मैनेजमेंट में अगर ये सिस्टम आ जाएगा तो बात बदल जाएगी। ये वाली बातें टेंडरनेस से आती हैं, दूसरों का भला कैसे करें। अब हमने चारों तरफ झूठ सुना है। मैंने वहाँ हॉस्पिटल में पढ़ा, लिखा था कि जो नर्स आपके साथ मिसबिहेव करती है उस नर्स का नंबर और नाम हमें ज़रूर बताना। हम उस नर्स को नौकरी से नहीं निकालेंगे, हम उस नर्स का 200 आवर्स का एक कोर्स रखेंगे ताकि उसके अंदर टेंडरनेस और अल्ट्रुइज़म इंजेक्ट किया जा सके। फिर हम उसी नर्स को कहेंगे कि तूने आगे एटलीस्ट 7 और नर्सिस को ये जाके समझाना है कि रॉन्ग प्रैक्टिस करने से जीवन हमारा तो खराब, मेरा कैरेक्टर तो हो गया, लेकिन मरीज़ का नुकसान हो जाता है। हम सोच रहे थे कि ये जितने गोरे गोरियां यहाँ पर नर्सिस हैं ये ठीक काम नहीं करती हैं और हमारे इंडिया में से जो नर्स आएगी वो ठीक काम करेगी। तो मैंने एक दिन एक गोरी नर्स से पूछा, तुम मेरी मदर को बहुत प्यार से और ध्यान से डील कर रही हो, इसका कारण क्या है? यू नो व्हाट शी सेड, मेरी मदर 2 साल हॉस्पिटल में रही थी। मैंने वहाँ पर नोटिस किया कि नर्सिस और डॉक्टर ठीक तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं, इसलिए मैंने स्पेशली नर्स का कोर्स किया और कोर्स करने के बाद मैं हर मरीज़ को अपनी माँ समझती हूँ और अपनी माँ समझ के उसके वहाँ सिंसियरली अपनी जॉब करके उसकी हेल्प करती हूँ। दिस इज़ अल्ट्रुइज़म। तो अब ये बातों को करने के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप क्या हैं, कौन से पड़ाव पर हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे को ये भी बोला विच इज़ वेरी प्लस ओवर हियर कि किसी भी फील्ड का कोई भी आकर यहाँ पर इस स्टडी को कर सकता है, इज़न्ट इट? आप कौन सी फील्ड के हैं डजेंट मैटर, आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप कौन सी फील्ड में हैं और किस पड़ाव पर हैं, कौन सी डिग्री ली है, कौन सी जाके जॉब करेंगे, किसको मैनेज करेंगे, इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका, मेरा, हम सबका, इंडिविजुअल का कैरेक्टर। उसमें मुझे देखना है कि मैंने पॉजिटिव करना है। अगर चारों तरफ लोग नेगेटिव करते हैं तो मैंने नेगेटिव ना करने वाली बातों को बिल्कुल अपने आप में सीखना है कि मैंने ये बिल्कुल नहीं करनी है और मैंने अल्ट्रुइज़म से जीना है। आप हाईलाइट हो जाएंगे कहाँ? अपने अंदर के भगवान की दरगाह में। आपको गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा, आपको प्रमोशन बोनस नहीं मिलेगा, लेकिन अपनी अंदर की सेल्फ एस्टीम में आप एक, उसको हम बोलते हैं चढ़ती कला, पॉजिटिव एटीट्यूड में रहेंगे। तो अब चारों तरफ इतने सारे नेगेटिव्स में से हम उस पेशेंट की दाद देंगे जो पेशेंट विंडो साइड पे लेटा था। मैंने सुना है कि एक कमरे में 2 पेशेंट थे, दोनों पेशेंट में से विंडो साइड वाला पेशेंट उठ नहीं सकता था, ऐसे हमेशा लेटा रहता था, उसको बैक इंजरी की कोई प्रॉब्लम थी। सो उस पेशेंट के वहाँ पर उसको सांस की ट्रबल भी थी और जो इस साइड वाला पेशेंट है ये उठ सकता था पर विंडो के बाहर देख नहीं सकता था क्योंकि विंडो से दूर था। जब वो वाले पेशेंट की अचानक एक दिन डेथ हो गई, इसने रिक्वेस्ट की कि मुझे विंडो साइड पे मेरा बेड कर दिया जाए, तो उसका बेड विंडो साइड पे कर दिया गया। अब इधर एक नया पेशेंट आ गया, ये वहाँ से बैठ के देखता है और साथ वाले पेशेंट को सुना के बोलता है,
बाहर कितना अच्छा सीन है। बाहर एक छोटी सी क्रीक नदी जा रही है, उसमें बतखें जा रही हैं, उस तरफ पेड़ लगे हैं, इस तरफ फूल खिले हैं। कितना अच्छा सुहावना मौसम है, कितने यहाँ पर तोते वहाँ पर चहचहा रहे हैं, कितनी ग्रीनरी है, मज़ा आ गया। एवरीडे ये बाहर का सीन ऐसे उसको बयान करता था। अब एक दिन इसकी डेथ हो गई। जब इसकी डेथ हुई तो ये पेशेंट भी बहुत प्यार से, शौक से विंडो साइड देखने के लिए रिक्वेस्ट करता, मुझे यहाँ पर भेजा जाए, शिफ्ट किया जाए। जब उसे शिफ्ट किया गया, उसने उठ के देखा, उस तरफ दीवार थी, कोई नदी नहीं थी, कोई बतखें नहीं थी, कोई तोते नहीं थे, कोई हरियावल नहीं थी। एंड ही वॉज शॉक्ड कि उसका देखने का नजरिया क्या था। आपका देखने का नजरिया जब बदल जाएगा, आपको अल्ट्रुइज्म और टेंडरनेस और पॉजिटिव एटीट्यूड में रहने की आदत बन जाएगी, तो आप क्रिएटिव बन जाएंगे। अब इसके आगे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। My name is Prakriti Tandon. Prakriti Tandon. प्रकृति टंडन जी। Sir, I want to know what basically success is, because for some people it's different and some others it's different. So, what's the basic definition of success? सक्सेस सारी दुनिया में लोग समझते हैं अपने डेस्टिनेशन को अचीव कर लेना, लेकिन मैं ये समझता हूँ सक्सेस इज़ हाउ मैक्सिमम यू कैन गेट अलोंग। कितना मैक्सिमम दुनिया के साथ मैं चल सकता हूँ। अगर एक भी इंसान मेरे ख्यालों का नहीं है, उसके साथ तोड़ना, उससे बचपन वाली कुट्टी कर देना, उसकी शक्ल कभी ना देखना, उसके साथ नाराज़गी शो करके उसको माफ़ कभी ना करना, दिस इज़ फेल्योर। एंड सक्सेस इज़ हाउ मैक्सिमम आई कैन गेट अलोंग, और वो मैक्सिमम है अनलिमिटेड। उसके लिए मेरे को अपना एटीट्यूड फिक्सअप करना होगा। क्या कि मैंने अपने आप को ठीक करना है, मैंने सब चीज़ों में से पॉजिटिव ढूंढना है। आपने सुना है कि ये जो पील ऑफ बना है, पील ऑफ कैसे बना? पील ऑफ जिसने बनाया था उसको ऑर्डर हुआ था ग्लू बनाओ जो इतनी ज़बरदस्त पेपर को चिपका दे कि वो पेपर से ग्लू उतरे ना, मीन्स वो पेपर वहाँ से फाड़ा ना जा सके। जब वो सामने आया तो जिसने चेक करना था उसने चेक किया और वो ग्लू उतर गई। ऐसे उठाया, कागज़ उतर गया। ये बॉस था, ये उसको नौकरी से निकाल सकता था, पर इसने वहीं पर एक क्रिएटिव आइडिया है, लेट अस स्टार्ट पील ऑफ आउट ऑफ दैट फेलियर। पील ऑफ वाज स्टार्टेड, टुडे वी आर बेनिफिटेड ऑफ दैट पील ऑफ, राइट। तो मैं मैक्सिमम जो लोग आसपास गलतियां करते हैं उनको साथ कैसे लेके चल सकता हूँ। मुझे, आप क्रिकेट देखते हैं? मुझे क्रिकेट का एक एग्जांपल याद आया, VVS लक्ष्मण। हैव यू हर्ड? इंडियन क्रिकेटर, बैट्समैन जो अच्छी बैटिंग करते हैं वो टॉप बैटिंग ऑर्डर में आते हैं, राइट। जो अच्छी बैटिंग करते हैं उनको टेल एंडर्स जो बॉलिंग करते हैं, जिनको बैटिंग नहीं आती है, उनके साथ बैटिंग करने का मज़ा नहीं आता, राइट। तो VVS लक्ष्मण का पूरी दुनिया की क्रिकेट हिस्ट्री में ये एग्जाम्पल चमकता सितारा रहेगा। एंड हेड्स ऑफ टू VVS लक्ष्मण। जब मैंने उसके बारे में पढ़ा कि इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के शायद या साउथ अफ्रीका के साथ मैच था और इनको 36 ओवर्स खेलने थे और टीम के 8 बंदे आउट हो चुके थे। VVS लक्ष्मण टॉप बैटिंग ऑर्डर का बेस्ट बैट्समैन, और उसके सामने आया आउट होने के बाद 8 प्लेयरों के बाद आया टेल एंडर बॉलर श्रीसंत, एंड उसको बैटिंग नहीं आती। इन स्पाइट ऑफ दैट कि ये उसको ये रियलाइज कराए कि तू तो बॉलर है, तेरे को बैटिंग आती नहीं है, उसको इंफीरियर फील नहीं कराया, रादर उसको पैट किया, डोंट वरी मैं तेरे साथ हूं, आज तेरी बैटिंग का चर्चा होगा।
इसने उसको ये रियलाइज नहीं कराया कि तेरे को बैटिंग नहीं आती, इसलिए लास्ट बॉल पे रन मत लियो, क्योंकि दोबारा ओवर चेंज होगा तो अगेन श्रीसंत हैज टू फेस द न्यू ओवर, राइट। तो इसने उसके साथ उसको 1% की बॉडी लैंग्वेज में खेलते हुए किसी भी बॉल पर रियलाइज नहीं कराया कि तेरे को खेलना नहीं आता। रादर आप जब फर्स्ट ओवर की फर्स्ट बॉल को इसने खेला, आउट ऑफ 36 ओवर्स 18 ओवर्स में वीवीएस लक्ष्मण ने पहली बॉल पे 1 रन ले लिया, जो कि सारी दुनिया की पॉलिटिक्स के बैट्समैन और कैप्टन के साथ कोच मिलके बोलता है दूसरे एंड वाला कमज़ोर है, उसके सामने तूने पहली बॉल पे 1 रन मिलता हो तो नहीं लेना, क्योंकि 5 बॉलों में उसके आउट होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। बट व्हाट लक्ष्मण डिड, लक्ष्मण ने 18 ओवर में पहली बॉल खेल के 1 रन लिया और हर ओवर की 5 बॉलें वीवीएस लक्ष्मण ने श्रीसंत को खेलने के लिए दी। नाउ द सक्सेस इज, कामयाबी ये है कि मैं अपने आसपास बर्तन मांजने वाले से लेके चपड़ासी से लेके टेल एंडर बॉलर की तरह हर किसी के साथ चल सकता हूं। दिस इज कॉल्ड सक्सेस, क्योंकि मैंने ये सीखा है, मैंने अपनी गलतियां सुधारनी है, मैंने और किसी की गलतियां नहीं सुधारनी। दिस इज रियल कामयाबी। थैंक्स प्रकृति जी, क्रिएटिव क्वेश्चन। Thank you, sir, for your valuable insights you have. We are very obliged to have you on. And we thank you, Balla sir and LP Singh sir, for this lovely lecture. थैंक यू। Sir, my question is आपका नाम very क्या? simple, sir. What's your name? Suvedu Shekhar Pandar. शेखर। Yes. Sir, it's very simple that how, in spite of all the odds we are facing, how will we feel that after winning in any circumstances we are, in any field we are, after losing something, how will we feel like winning after losing also? आफ्टर दोज लॉस, After we are lost in that particular, be it a game, be it an event, be it an organization we are in, be it in any task we are in, but we somehow lost it and we are not in the control of the situations, and but we want that it should not demotivate us, it should motivate us and to work further. So how will, in case that feeling in us, आप अब इसको नट शेल में एक सेंटेंस में हिंदी में बोले। मुझे सर कैसा पता चला है कि मैं हार के भी जीता हूँ? हार के भी जीता हूं। हमने कुछ भी करना है ना, अगर उसमें हमने हार जीत देखनी शुरू की तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि बार बार क्यों क्रिकेट मेरे सामने आ रही है, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट बड़ा पॉपुलर है। मुझे नहीं लगता कि तेंदुलकर जीतने के लिए खेलता है, खेलने के लिए खेलता है या जीतने के लिए खेलता है। सब वो तो अलग है, बस माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि वी शुड नॉट फील दैट विनिंग और लूजिंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एनी गेम, बट ऐसा हमारा दिमाग में ऐसा है कि ऐसा तो होता है, वन शुड विन एंड वन विल लूज, ऐसा तो होता है, बट विल नॉट इम्बाइब दैट इन आवर फीलिंग्स दैट वी हैव लॉस्ट और वी हैव वॉन, बट इट शुड मोटिवेट अस टू वर्क फर्दर। वो सर मोटिवेशन वाली चीज़ कहते हैं। बस वो मोटिवेशनल यही है कि मुझे जीतना नहीं है और ना मुझे इंसल्टिंग और हार फील करनी है। मुझे अपनी टास्क सिंसियरली, पैशनेटली, जुडिशियसली करनी है। दैट्स इट। सो आप जैसे बोले थे कि आपकी टेंडरनेस कैसे है? टेंडरनेस के साथ जीनी है। जब मेरे सामने वाला गलती करेगा, मैंने अपना बैलेंस लूज नहीं करना। ये एटीट्यूड मेरे को हेल्प करेगा क्रिएटिव करने के लिए, राइट? लेकिन हम क्या करते हैं, उसको नौकरी से निकाल देते हैं, स्कूल में टीचर उसको मुर्गा बना देती है, घर में माता पिता उसको मार के एक टाइम की रोटी नहीं देते हैं। यही हम सब कुछ करते हैं चारों तरफ। लेकिन अगर मैं ये सीख लूँ कि मैंने किसी को पनिश नहीं करना, मैंने फॉरगिवनेस सीखनी है, कैसे आएगी वो? टेंडरनेस से। क्योंकि मुझे ये भ्रांति हो गई है, मैं कभी गलत नहीं होता, बाकी सब गलत होते हैं।
है ना। इस भ्रांति से मैं छूट जाऊंगा तो मैं सोचूंगा इसकी गलती तो मैं पकड़ रहा हूं, मेरी गलती कौन पकड़ेगा, मेरी गलती मैंने पकड़नी है। रिसेंटली आई केम टू नो कि एक स्कल्पचर बनाने वाला कलकत्ता में दुर्गा पूजा के टाइम पे स्कल्पचर बनाता था और एक मॉल के बाहर स्टैचू लगना था और स्टैचू को लगाते टाइम उसको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला तो उसने उसको बनाने का 3 महीने टाइम मांगा और जब उसका स्टैचू बना तो उसने उस स्टैचू को ज़मीन पे लिटा दिया और जिनसे ऑर्डर लिया था उनसे थोड़ा टाइम और मांगा और बोला मैं दोबारा से स्टैचू बनाऊंगा। उनका सेल्समैन देखने आया और वो पूछता है ये स्टैचू तो बन गया है, आप दोबारा से क्यों बना रहे हैं? बोलता है इस स्टैचू में थोड़ा फ्लॉ है, ठीक नहीं बना है। तो उसने कहा इसमें क्या फ्लॉ है? उसने बोला आँख की पलक के नीचे थोड़ी सी कहीं पर कमी है। इसने बोला जिस मॉल में ये स्टैचू लगना है उस मॉल में 40 फुट ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर ये स्टैचू लगेगा। इस स्टैचू की हाइट 26 फुट है, 40 और 26 66 फुट के ऊपर जाके आँख किसको नजर आनी है? आप सर यही वाला स्टैचू हमें दे दीजिए, वहाँ पर इतने हज़ारों लाखों लोग आएंगे, किसी को नहीं पता लगेगा। नाउ ये स्कल्पचरिस्ट बोलता है मुझे समझ में आ रहा है कि इसमें नुक्स है, इसलिए वहाँ पर कोई देख सके ना देख सके, मेरी आँख देख रही है कि ये स्टैचू गलत है। किसने गलत बनाया? मैंने, इसलिए मैं इसको अप्रूव नहीं करता। बस अपने आप को ये बोलना मेरी गलती हो सकती है, दैट्स इट, और मैंने अपनी गलती को संवारना है। दिस एटीट्यूड हेल्प्स अस हाउ टू फॉरगिव अदर्स, हाउ टू गेट अलॉन्ग विद दोज टेल एंडर्स, उसके अवगुण को माफ करके उसको साथ लेके चलने की आदत, ये हमको बहुत हेल्प कर सकती है। बी इट माई ऑफिस, बी इट माई करियर, बी इट माई स्टडीज, बी इट माई स्पोर्ट्समैन फील्ड और बी इट माई परिवार, कहीं भी मैं होऊंगा ये मेरे को एटीट्यूड हेल्प करेगा। थैंक यू सर। थैंक यू शेखर जी। मैं वीर जी से एक सवाल पूछूंगा जो बेसिकली हमारे स्टूडेंट्स कभी ना कभी बार बार हमसे ही पूछते हैं, फैकल्टी से पूछते हैं। ये सवाल है, दो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, रूममेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, एक को A+ ग्रेड मिलता रहता है, दूसरे को B+ मिलता रहता है। अब ये A+ और B+ फाइनली जब पास आउट होते हैं और नौकरी के जब सवाल उठता है तो B+ को नौकरी मिल जाती है 40 लाख रुपया साल की और A+ को मिलती है सिर्फ 20 लाख रुपया साल की। मेरे पास आए और पूछा कि साहब ये इंसाफी कहाँ की? मैं A+ वाला गेटिंग लेसर सैलरी, B+ मैं पढ़ाता हूँ, मैं उसको सब कुछ सिखाता हूँ, A+ B+ को बोलता है इसको एक्स्ट्रा पैसे क्यों मिल रहे हैं, मुझे क्यों नहीं मिल रहे? ये थोड़ा ज्ञान दे दीजिए। डॉक्टर भल्ला जी, विद ड्यू रिगार्ड्स, मैं ज्ञान देने वाला कोई नहीं हूँ, मुझे अभी खुद ही नॉलेज नहीं है। मुझे पहली बात तो ये लगती है कि A+ और B+ एक ऐसा कैंसर की बीमारी है इस धरती पर जिसका नाम कंपटीशन रखा गया है। बात तो देखने वाली ये है कि A+ और B+ में से विवेक बुद्धि, कॉमन डिवाइन इंटेलेक्ट किसके पास है। नंबरों से कुछ नहीं हो जाता। आप सबने भी वो आमिर खान की मूवी देखी है जिसमें चतुर पढ़ा हुआ है, राइट? तो मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो B+ वाला है, अगर उसके पास स्ट्रीट स्मार्ट वाली विवेक बुद्धि है कि दुनिया का भला कैसे किया जा सकता है, तो दैट मस्ट बी नर्चर्ड, दैट मस्ट बी वेलकम्ड। कंपटीशन के कारण ऊंचे नंबर लेने वाला और नीचे नंबर लेने वाले से बेटर काउंट नहीं किया जा सकता। बेटर काउंट वो किया जाएगा जिसके अंदर इंसानियत की खसलत है, खसलत।
जिसके पास वार्मथ है, जो दूसरे का दिल ले सकता है, जो दूसरों को भी प्यार कर सकता है। जितने भी मैनेजमेंट में बड़े बड़े काम करने वाले हैं, अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ का टेंडरनेस के साथ ध्यान रखना शुरू कर दें, रादर के टाइम नोट करें तुम लेट क्यों आए, अगर वो उससे पूछें तुम आज लेट आए हो, कहीं तुम्हारे घर में तुम्हारी मदर बीमार तो नहीं है, तुम्हारे को घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अरे नहीं आना था ऑफिस, कोई बात नहीं, मुझे बताते, ड्राइवर भेज देते, उनको हॉस्पिटल ले जाते, किसी को मैं ऑफिस से भेज देता। अगर ऐसा एटीट्यूड बनता जाएगा तो वो वाला एटीट्यूड चाहे B+ के बदले C+ वाला हो, चाहे फेल क्यों ना हो, दैट विल क्रिएट द इंसानियत भरपूर एनवायरनमेंट इन दिस ऑन दिस अर्थ। हम उसकी बात सीख रहे हैं। ये पहला इंस्टीट्यूट है कि जिसमें डीन साहब और प्रिंसिपल साहब या डायरेक्टर साहब सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल सर। सर आई अप्रिशिएट देयर दिस हम्बलनेस। और पर इसमें मेरा एक नुकसान हो रहा है कि मेरी वाह वाह हो गई कि मैं इनको भी पढ़ा सकता हूँ। मेरी ईगो को 4 चांद लग गए। सो एनीवे आई अप्रिशिएट। मेरे 2 सवाल। हाँ जी। पहला सवाल तो ये है कि एज अ डायरेक्टर आई एंड अप डीलिंग विद पीपल रिगार्डिंग ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑल दिस इश्यूज और स्टूडेंट्स के साथ। Now, मेरा एक मानना है कि अभी जो जनरेशन आ रही हैं सब्सिक्वेंटली, उनमें पेशेंस एंड वेट फॉर रिवार्ड खत्म हो गया। मेरे कलीग मेरे पास आते हैं, मैंने बहुत काम किया, इसको भी एक इंक्रीमेंट, मेरे को भी एक इंक्रीमेंट, ऐसा क्यों? डे इन डे आउट मैं बहुत काम करता हूँ, वो दूसरा काम करता है। मेरा प्रयास ये रहता है उनको करने का कि भाई काम सब करते हैं, आपका देखने का नजरिया आपका एवरीबॉडी से है, बट एक इम्पेशंस यंग कोलीग्स में और स्टाफ में और स्टूडेंट्स में बढ़ती जा रही है। हम कहते हैं जरूर है, पर असर थोड़ी देर होता है, बाद में देखो बैक टू सेम ट्रैक, हाउ टू डील विद इट। वेरी सिंपल। पहली बात कि कोई भी दुनिया का अगर हम काम करें, उसको हम गुरबानी में सीखते हैं, काहू फल की इच्छा नहीं बाचे। कोई भी काम करने के बाद उसकी रिवार्ड की इच्छा होगी तो मुझे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि काम मैंने किया, उसको रिवार्ड देने वाले की अकल अपनी है, सिस्टम उसके पास किसी और का है। सिस्टम और अपनी अकल यूज़ करके वो मेरे को उस तरह तोल ही नहीं रहा जितना मैं अपने आप को रिवार्ड देने के बारे में सोच रहा हूँ, तो वन विल बी इन ट्रबल। इसलिए हम कोई भी काम करेंगे, रिवार्ड लेने के चक्कर में करेंगे तो टेंशन बनी रहेगी, जिसको सुपरफ्लुअस स्ट्रेस बोलते हैं, वो स्ट्रेस आ जाएगा, तो हम रिवार्ड नहीं लेंगे। अब बात शुरू होती है कि मुझे ट्रबल होती क्यों है जब दूसरे को रिवार्ड दिया जाता है, राइट? ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है ना। तकलीफ ज़्यादा ये हमको प्रॉब्लम ही तब होती है जो दूसरों के, मेरे दुखों से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, दूसरों के सुखों से मुझे प्रॉब्लम है। मैं दूसरों के बर्तन में क्यों झांकता हूँ? मुझे अपना माइंड योर ओन बिजनेस करना चाहिए, दैट्स इट। अपना काम पैशनेटली करना है, अपना फर्ज पैशनेटली सिंसियरली निभाना है। दूसरे ने किया, उसने हेरा फेरी से या सिफारिश से रिवार्ड ले लिया, सो व्हाट? मैंने जो किया मुझे वो मिल गया। आप सब ने पिकासो सुना होगा, और पिकासो की पिक्चर वर्सेस व्हाट आई डू, आई विल शेयर दैट। पिकासो की पिक्चर बहुत महंगी बिकती है, लेकिन जिन दिनों में पिकासो बनाता था वो बिकती नहीं थी, और वो बहुत गरीब था, उसके खाने के लिए भी प्रॉब्लम बनी हुई थी, ब्रेड बटर की भी। तो पिकासो को उसका भाई देख के तरस खाता था, इसलिए उसके भाई ने किसी और इंसान को पैसे दिए, तुम जाओ और पिकासो को बोलो तुम अपनी पेंटिंग्स दिखाओ, उसकी पेंटिंग्स में से किसी भी पेंटिंग को देख के बोलना इसके मैं इतने 1000 रुपये देता हूँ, तुम ये पेंटिंग मुझे दे दो। तो उसने पिकासो से बोला ये पेंटिंग कितने की है? पिकासो बोला मेरी पेंटिंग बिकने के लिए नहीं है। अब उसने बताया नहीं कि तुम्हारे भाई ने मुझे पैसे दिए हुए हैं तुमको देने के लिए। उसने उससे पूछा अगर तुमने बेचनी नहीं है तो अपनी पेंटिंग बनाते क्यों? पिकासो सेड मैं बेचने के लिए बनाता ही नहीं।
जो भी क्रिकेटर अगर खेलने के लिए खेलता है तो वो अंडरवर्ल्ड की मनी से बेट लगा के नहीं खेलेगा, खेलने के लिए खेलता हूँ। ऐसे ही मुझे न्यूयॉर्क में एक बच्चे ने पूछा, आप इंजीनियर हैं और आप अपना ब्रेड बटर कमा सकते हैं, लेकिन इसको सब कुछ छोड़ के आप अपने प्रोग्राम करने के चार्जेस बिल्कुल नहीं लेते हैं, तो आपको वर्ल्ड वाइड ये करने से क्या मिलता है? तो मैंने उसे बोला, आई एम वेरी रिच मैन। रिच मैन की डेफिनेशन पता है क्या है? जो तुम्हारे पास है तुम वो दूसरों को दो और उसके चार्जेस ना लो। तो मैं अपनी नॉलेज, अपना प्यार, अपना वजूद, अपनी आत्मा, अपना वार्मथ लोगों से बांटता हूँ और उसके चार्जेस नहीं लेता हूँ। उस बच्चे को मैंने 10th ग्रेड वाले बच्चे को जवाब दिया। तो इसको करने में मुझे मज़ा आता है। अब जब कर रहे हैं दूसरों के साथ तो कंपैरिजन कर ही नहीं रहे हैं कि मेरी तरह अगर कोई और कर रहा है तो उसका नाम ज़्यादा क्यों है, उसके चेले ज़्यादा क्यों हैं, उसको फॉलोइंग ज़्यादा क्यों है, उसके लोग उसको मानते ज़्यादा क्यों हैं, ये चक्कर ही नहीं है। तो अगर हम ऐसे जीने लगें जैसे पिकासो अपनी पेंटिंग करने के लिए करता है, बेचने के लिए नहीं करता है, तो आप कर सकते हैं कि मैंने अपना काम पैशन से किया, इसका रिवार्ड मिला या नहीं, मैं रिवार्ड लेने नहीं आया था, अपना काम करने आया था। थैंक यू वीर जी। दूसरा एक कन्फेशन है, फिर मैं आपसे जानना ही चाहता हूँ मैंने गलत किया या सही किया। ये बात है 91-95 की, जब मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ता था। वीकेंड पे मैं अपने कॉलेज में मॉर्निंग में रिसेप्शन डेस्क मैनेज करता था। वीकडेज पे तो रिसेप्शन का स्टाफ आता था, वीकेंड पे स्टूडेंट मैनेज करते थे। तो मैं 8:30 बजे मेरे को काम शुरू करना होता था। तो सर्दी गर्मी सैटरडे संडे की ड्यूटी होती थी। यूज्ड टू गेट एडिशनल मनी फॉर दैट, फॉर माय सबसिस्टेंस। तो एक दिन हम, मेरे प्रोफेसर की वाइफ जो न्यूजीलैंडर थी, तो ऑक्सफोर्ड से 15 किलोमीटर दूर रहती है उसका कैलेंडर, तो कहती है मैं बहुत रिलीजियस हूँ, मैं हर संडे को चाहे बर्फ़ पड़ रही हो कुछ भी हो, मैं अपने चर्च में जाता हूँ। मैंने कहा एलिजाबेथ मैं भी उतना ही रिलीजियस हूँ, मैं हर सैटरडे और संडे को सुबह 8:15 बजे अपनी 8:30 की ड्यूटी के लिए साइकिल पे पहुँच जाता हूँ अपने कॉलेज। वो कहती हाउ कैन यू इक्वेट बोथ ऑफ देम? ऐसे फॉर मी दे आर इक्वली होली। बताइए मैं गलत वेरी नाइस। तो मेरे को बताइए मैं गलत था या सही? आप सही थे, क्योंकि वर्क इज वर्शिप। अगर मैं अपने काम को पैशन से करता हूँ तो ये वर्शिप है। अगर मैं अपने काम को हाफ हार्टेडली करता हूँ और उसको बोलते हैं बद्दा चट्टी जो परे ना गुण ना उपकार, बद्दा चट्टी करता हूँ, टाइम निकालने के लिए करता हूँ, दूसरों को दिखाने के लिए करता हूँ, तो मैं उसको पैशन से नहीं करूँगा। और जब हम किसी काम को सिंसियरली उसमें पूरी तरह खूब के करते हैं तो इसको भक्ति बोलते हैं, इसको वर्शिप बोलते हैं। लोग मंदिर मस्जिद में जाके, गुरुद्वारे में जाके भी वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसको बोलते हैं मन कर कबहू ना हर गुण गायो। मैंने दुनिया को दिखाने के लिए प्रेजेंस यहाँ पर की धार्मिक स्थान पर अगर मैं अपने काम को पैशन से करूँ, अपने फ़र्ज़ को पैशन से निभाऊँ, तो ये भगवान की प्रेजेंस में मेरी वर्शिप है। वीर जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी आपने पिकासो का दिया एग्जाम्पल और आपने अपना भी एग्जाम्पल दिया कि मेरे पास जो है अगर मैं वो दे देता हूँ विदाउट एनी चार्जेस तो आई एम रिच। बट देन लिविंग इन दिस मटीरियल वर्ल्ड वी वांट मनी ऑल्सो। तो अगर मैं, मेरी जो कैपेबिलिटी है या कुछ भी, अगर मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट बांटती हूँ तो हाउ विल आई अर्न माई लिविंग? आपका नाम क्या है? सपना। हम जब कोई भी जॉब करते हैं या बिजनेस में जाते हैं तो वहाँ पर मेरी लिविंग के लिए जो मुझे पे किया जाता है या जो मुझे प्रॉफिट मिलता है उससे मेरी ब्रेड बटर कमाई जाती है। लेकिन जो काम मैं जिस पैशन और जिस सच से करता हूँ, करती हूँ, उसकी कॉस्ट कोई नहीं पे कर सकता। आप में से कोई भी अगर मार्केट से दूध लाएगा उसकी कॉस्ट पे कर सकता है, कि मदर के दूध की एक भी बूंद को आप कॉस्ट पे नहीं कर सकते हैं।
और वो उसकी कॉस्ट मांगती नहीं है। अगर वो बोले ना मैंने तेरे को दूध पिलाया, अगर मैं दूध के लिए पैसे नहीं लूंगी तो मेरी बॉडी में दूध बनेगा कैसे, ऐसे बोलती हो। ये तो दोनों ही चीजें अलग अलग हैं। जो मेरे पास कैरेक्टर है, मेरे को किसी ने पूछा था वीर जी आपके प्रोग्राम की, आप अपने लेक्चर की फीस क्यों नहीं लेते, आपकी बुक्स और टेप्स क्यों, उनके चार्जेस आप क्यों नहीं लेते। जितनी ये सारे बच्चे बुक्स और टेप्स बेचते हैं उससे हम स्लम एरिया में नीडी लोगों के लिए दवाइयाँ बांटते हैं, और जो गरीब पढ़ नहीं सकते हैं उनको पढ़ने के लिए हम ये फंड्स यूज़ करते हैं। मुझे पूछा गया आप क्यों नहीं लेते, कम से कम हर टेप और बुक में अपना 1 रुपया तो आप रॉयल्टी रख सकते हो। तो मैंने उससे बोला कि मैं इसको पैसे के लिए नहीं करता हूँ। अगर पैसे के लिए मैं इसको करूँगा तो इसमें मेरा इंटरेस्ट बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लेक्चर मैं कर रहा हूँ, जो मुझे थॉट प्रोसेस में डिवाइन मैसेज समझ में आता है, वो मैं शेयरिंग कर रहा हूँ, वो दुनिया के हर इंसान के भले के लिए है। तो वो करते टाइम मेरे उस लेक्चर का जो मैटर है, उस मैटर को दुनिया की कोई मैनेजमेंट का बड़े से बड़ा कितने लाख डॉलर देगा, मैं कॉस्ट कैसे रखूं। मैंने एक रोती हुई माँ के आंसू पोंछ दिए, इसकी मुझे कितनी कॉस्ट आप देंगे। जब मैं यहाँ इंडिया में आता हूँ, सॉरी टू से, मैं जिस कार में बैठा हूँ या स्कूटर में बैठा हूँ, रेड लाइट पे जो ही वो खड़ी होती है तो साइड पे मैं देखता हूँ, जिससे मेरी आंखें मिल जाती हैं, चाहे वो बस में बैठा है, आंखें मिलते ही मैं स्माइल पेश करता हूँ। उस स्माइल को देखते ही वो इंसान हैरान रह जाता है, और मैं नोटिस करता हूँ कि उसकी ये त्योड़ी, ये जो घुटा हुआ मत्था है, ये उसका खिल जाता है, और वो भी मेरी तरफ देख के हंस पड़ता है। उसको और मुझे मालूम है हम दोनों के बीच में क्या हुआ। उसकी कॉस्ट आप कितने लाख डॉलर लगाएंगे। किसी गरीब को, सॉरी गरीब, किसी भी नीडी को किसी की भी तरफ हमदर्दी से, प्यार की तरफ एक अक्षर बोलना और अपनी बॉडी लैंग्वेज से उसको अपनी वार्मथ ट्रांसमिट करानी, आप इसकी कॉस्ट क्या रखेंगे। उसकी कॉस्ट पे नहीं की जा सकती है। इसलिए जो हम जॉब करते हैं, दैट इज जस्ट इकोनॉमिक सिस्टम से, ताकि वहाँ एक मेरे को तनख्वाह दी जाएगी और उस तनख्वाह से मैं अपना घर का ब्रेड बटर चलाऊंगा। लेकिन जिस पैशन से मैं करता हूँ उसकी कॉस्ट कोई पे नहीं कर सकता है। चौकीदार भी अपने पैशन से करता है, और ऊपर मैनेजमेंट के अपर तक अगर पैशन से करता है तो उसकी तनख्वाह बराबर काउंट की जाती है, विच इज़ इनवैल्यूएबल। उसको बोलते हैं अमूल गुण अमूल व्यापार। उसका व्यापार पैसे से काउंट नहीं किया जा सकता। आर यू सेटिस्फाइड? क्वाइट सेटिस्फाइड। तो माँ से सीख लेना, माँ हमसे कोई भी कॉस्ट नहीं मांगती है। एम आई राइट? जो मांगती होगी वो माँ नहीं होगी, वो सेल्फिश होगी। तो माँ के साथ सेल्फिश माँ जुड़ ही नहीं सकता। माँ मीन्स माँ, और दुनिया की कोई माँ कॉस्ट नहीं मांगती है। थैंक यू। थैंक यू। Namaskar, Virji. नमस्कार जी। It was so nice to have an interaction. I would only like to have your comment on one or two incidences, because my feeling has always been it is very easy to teach but very difficult to practice. यस। Because I was one of my patients. I consulted because his young son died at the age of 14 years, and I gave him a lot of counseling. I gave him a lot of time in the afternoons, and that man became all right. He was actually in depression, and sometimes he got psychotic also. But by and by he was cured, and I said that you go and join your duties. And he praised me like anything, but he said to me कि सर आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पर जिसको लगती है उसको पता होता है.
This is one incident which I have never been able to forget in my life. In fact, that changed me a lot because it is very easy to sympathize but difficult to empathize. Oh wow. Second issue was there were two friends. This is also a true incident. पहले आपको पता है कि दोस्ती बहुत ज़्यादा होती थी, समवेयर इन 50s 60s. तो दोनों फ्रेंड जो है इकट्ठे ही रहते थे हर वक्त, खाना पीना इकट्ठा. दे वर फॉर ईच अदर और ऑल टाइप ऑफ फैमिली रिलेशंस दे हैड. तो एक फ्रेंड जब वापस आया, घर में आया, तो देखा कि दूसरा काफ़ी नाराज़ है, बहुत दुखी है. तो ही आस्क्ड हिम कि भाई क्या हो गया. तो ही ट्राई टू टेल हिम कि यार ये टेलीग्राम आई है, वो बेटे की डेथ हो गई है. तो दूसरा आदमी ने, जो उसका फ्रेंड था, ही स्टार्टेड टेलिंग हिम अगेन कि भाई दुनियादारी है, ये है, वो है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स. तो ही सिंपली सेड कि नहीं, मेरे बेटे की डेथ नहीं, तुम्हारे बेटे की हुई है. द मोमेंट ही हर्ड दैट इट इज हिज सन, ही गॉट ए हार्ट अटैक. सो आई वांट योर कमेंट ऑन दीज टू इश्यूज. आपका नाम? आई एम डॉक्टर खोखर, आई एम ए प्रोफेसर हियर. डॉक्टर खोखर जी, आपने बहुत अच्छा बोला कि सिंपथाइज़र होना बड़ा आसान है, लेकिन एम्पैथी होना बड़ा मुश्किल है. एम्पैथी में हमारे अंदर एक फीलिंग होती है जिसको नाम मैंने आज अल्ट्रुइज्म बोला या टेंडरनेस बोला. एम्पैथी में सिर्फ एक ही पॉइंट है कि दूसरों के साथ हमदर्दी की भावना होगी तो प्रैक्टिस होगी. लेकिन जब हम पढ़ते हैं कि हम सारे वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, आप मानते हैं वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड? आप मानते हैं ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड? तो ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड में क्या होता है, जैसे इन्होंने बताया कि अगर उसको बोला गया कि मेरे बेटे की डेथ हुई है तो उसको माइंड नहीं हुआ, उसने कहा कोई बात नहीं, बाड़ा मनना चाहिए और रज़ा में रहना चाहिए. लेकिन जो ही उसे बताया गया तुम्हारे बेटे की डेथ हुई है तो उसका हार्ट अटैक हो गया. पर अगर हम ये सीख लें कि तेरा बेटा मेरा बेटा है, ये सीख लें कि तेरे माता पिता मेरे माता पिता हैं, तो हमको इक्वल पेन होगी. फिर हम दूसरे के बेटे के सुनने के टाइम बिल्कुल ऐसे अलूफ रहें और मेरे बेटे के टाइम हार्ट अटैक हो जाए, ये वाला हमारा हार्ट अटैक भी नहीं होगा और दूसरे के बेटे के सुनते टाइम अलूफ भी नहीं होंगे. हमको चारों तरफ देखने की ये समझ में आ जाएगी. मैंने अमेरिका में ऐसे सुना, एक डॉक्टर था और उस डॉक्टर को अमेरिका में सबसे ज़्यादा पेशेंट के परिवार की तरफ से सू करने का डर होता है अमेरिका में. उस डॉक्टर को बोला कि आप मेरे बेटे को देखने के लिए लेट आए हैं, आप उसकी सर्जरी करने के लिए इतना टाइम लगा रहे हैं मेरे बेटे के लिए, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया. उसको बहुत गुस्सा किया गया. बाद में मालूम हुआ कि वो डॉक्टर लेट क्यों हुआ था, क्योंकि वो अपने बेटे की सर्जरी कर रहा था. जब उसको मैसेज ऐसे मिला कि किसी और का बेटा ऐसे बीमार है, उसको सर्जरी के बीच में से शुरू करने से पहले ही आना पड़ा. और यहाँ पर वो उस अल्ट्रुइज्म और एम्पैथी के इमोशन से आया. और जब वो यहाँ ऑपरेशन कर रहा था, उसके बाद वो घर वालों से नहीं मिला. घर वालों ने सोचा हमने इसको बहुत डांटा है, ये माइंड कर गया है, इसलिए बैक डोर से निकल गया है. लेकिन बाद में पता लगा कि वो बैक डोर से इसलिए निकल गया था कि इनका बेटा तो उसने बचा लिया, पर वो अपने बेटे के लिए जल्दी से जल्दी पहुंचा और उसके बेटे की डेथ हो गई थी. ये उसको सू करने के चक्कर में थे कि तू लेट आया और हमको ये हुआ वो हुआ. पर इनका बेटा बचने के बाद इनको मालूम हुआ कि दरअसल कहाँ पर कौन कौन सा नेगेटिव हम समझ रहे थे, वो उसने अपने बेटे को सेक्रीफाइस किया. पर ये एथिकल बातें नहीं है, ये उस वैल्यू की बात है जिसका नाम आज एथिक्स और वैल्यूज रखा जा रहा है कि हाउ आई कैन लिव फॉर अदर्स. ये ऐसे नहीं है कि भाई जहाँ भी गर्दन देनी है मैं अपनी गर्दन दे दूंगा, ऐसे नहीं है. ये एक भावना है कि तुम्हारे साथ जो हुआ है ये मैं मानता हूँ कि मेरे साथ हुआ.
आज तुम्हारी माँ बिना दवाई के मर जाएगी, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आगे से कोई भी माँ बिना दवाई के नहीं मरनी चाहिए। मैं ऐसा सिस्टम क्रिएट करूँ। अमेरिका में साइकोलॉजी की क्लास में मेरी बेटी एक हफ्ते के क्वेश्चन के बाद बहस जितनी भी हुई टीचर्स और प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, तो मेरे सामने उसने ला के क्वेश्चन रखा, पापा आप बताओ कि अगर एक गरीब विधवा माँ, उसका बच्चा उसको देख रहा है कि मेरी माँ बिना दवाई के मर जाएगी, वो बच्चा चोरी करके केमिस्ट की दुकान से दवाई लाके अपनी माँ को देता है और बचा लेता है। उस बच्चे ने तो एथिक्स और वैल्यू सारी तोड़ दी कि वो चोरी कर लाया। अब बताओ, उसका चोरी करके माँ को दवाई देना क्या ठीक है? मैंने बिना सोचे एट वंस अपनी बेटी को बोला, यस, उसका चोरी करके दवाई माँ को देना गलत नहीं है। शी सेड, पापा एक हफ्ता ये बहस हुई थी कि फिर तो आप चोरी को बढ़ावा दे रहे हो, आप तो लोगों को सिखा रहे हो कि ये मॉरल तोड़ दो, ये एथिक्स और ये वैल्यूज़ तोड़ दो कि चोरी कर लो। तो मैंने उससे पूछा, ये एथिक्स और वैल्यूज़ बाद में आएंगी, पहले ये क्वेश्चन उठता है, वो ऐसा कौन सा सेल्फिश समाज है जिस समाज में एक विधवा, एक स्त्री इतनी गरीब है कि उसका बच्चा अपनी माँ को मरते देख नहीं पा रहा है कि इसको दवाई नहीं दी जा रही। इसका मतलब समाज का सिस्टम ही गलत है जिसमें वो बच्चा मजबूर हो गया अपनी माँ को दवाई देने के लिए। समाज के उस सिस्टम को पहले वैल्यूज़ और एथिक्स पढ़ानी चाहिए कि इस धरती पर किसी की माँ भी मेरी माँ है, तो ही हम वो मैनेजमेंट और सिस्टम बनाएंगे ना सर, डॉक्टर खोखर साहब। तो जब हम वो मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे, तेरी माँ मेरी माँ है, तो उस सिस्टम में तो कोई गरीब विधवा माँ को दवाई के लिए बिना दवाई के मरना ही नहीं पड़ेगा, उसके बेटे को चोरी का ख्याल भी नहीं आ सकता। एम आई राइट? तो चोरी को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा। बात तो ये पकड़नी है कि इसमें ब्लैक शीप कौन है। ब्लैक शीप वो समाज है जिसने ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया कि एक गरीब बिना दवाई के मर सकता है। वो बच्चा अपनी माँ को नहीं देख सकता कि मेरी माँ बिना दवाई के मर जाए। उसको जितने मर्जी आप पाठ पढ़ा लो, जितना मर्जी धर्म पढ़ा लो, जितने मर्जी गुड कैरेक्टर के एथिक्स के लेक्चर दे लो, उसको अपनी माँ बचानी है। बाकी समाज इससे क्यों अलूफ है? बाकी समाज इससे क्यों इतना खुदगर्ज होकर अपने घर में बैठा है? जब कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम बोलते हैं पहले अपना घर देखना चाहिए, फिर बाद में दूसरों का देखना चाहिए। यही सेल्फिशनेस का कीड़ा है जो हमारे दिमाग में घुस जाता है और उस टाइम पॉपअप होता है। सर, माय नेम इज़ निधि। निधि, या आई एम इन फर्स्ट ईयर। सर, मुझे पूछना था, अभी आपने वैल्यूज़ और एथिक्स की बात करी। एज अ स्टूडेंट जिस पॉइंट पर अभी हम हैं, व्हाट शुड बी द वैल्यूज़ इन अस? ऐसी क्या वैल्यूज़ हमारे अंदर होनी चाहिए? हम चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे माँ बाप हैं, और चाहे मैनेजमेंट में कुछ भी हैं, वैल्यूज़ तो हमेशा सेम ही रहती हैं। बट सर, कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास दो सिचुएशंस होती हैं। जैसे अभी आपने फैमिली का एग्जांपल दिया कि सेल्फिश बन जाते हैं हम, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता एट दैट टाइम। तो ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए विच शुड बी इन आवर माइंड? वो सिचुएशन बताओ ना दोनों। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल काइंडली। एग्जाम्पल हम कुछ भी ले सकते हैं, लाइक फैमिली मेम्बर इज़ इल और समथिंग, और दूसरी जगह कोई और मेम्बर इज़ ऑल्सो इल, तो आर प्रायोरिटी विल बी ओनली, जैसे अभी आपने डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया, तो दीज वैल्यूज़ आर, आई मीन मैं ये पूछना चाहती हूँ, ऐसे क्या चीज़ हम अपने अंदर इम्बाइब करें कि हमारे अंदर ऐसी वैल्यूज़ आएँ? वील ऑब्वियसली क्योर आवर फैमिली मेम्बर फर्स्ट एंड देन विल गो फॉर समवन एल्स। तो ऐसे क्या चीज़ अंदर आनी चाहिए, क्या सोच कर चलना चाहिए जो कि ये वैल्यूज़ हमारे अंदर आएँ, और क्या और वैल्यूज़ होनी चाहिए? हाँ निधि जी, वो वैल्यू ही एम्पैथी है। उसी वैल्यू को ही तो हम बात कर रहे हैं कि उसको अल्ट्रुइज्म, दूसरों के लिए जीना कहते हैं। वो अपने आप को सिखाना नहीं पड़ता है, वो डेली छोटा छोटा, जैसे हम माँ को घर में देखते हैं सारों के लिए काम करती है, सबसे लेट सोती है, सबसे पहले उठती है ना? तो ये उसको पढ़ाया थोड़ी ना गया है,
ये उसका अपना कैरेक्टर है। इसको हम जब पल पल अपने जीवन में सीखते हैं तो अपने आप समझ में आ जाता है। ये इसी को बोलते हैं तुर्की बाणी, और ऊपर से भगवान का पैगाम, खुदा का पैगाम आया। मीन्स इमीडिएटली ऑन द स्पॉट आप राइट डिसीजन लेते हैं कि मैं इस सेक्रीफाइस को करने के लिए तैयार हूँ। वो डेली प्रैक्टिस में ही होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपने इंडिया में भी अब ऐसे सिस्टम हो गया है, लेकिन अमेरिका में भी जब मॉल्स होते हैं, मॉल्स के बाहर पार्किंग होती है, यहाँ भी होती है, राइट। पार्किंग के वहाँ पर लिमिटेड कारें खड़ी होती हैं। मॉल के अंदर बंदे ज़्यादा हैं, मॉल के अंदर 4 बंदे हैं, हर बंदा एक एक कार लेके आया है और पार्किंग नहीं मिल रही। एक बंदा जो आईटी इंडस्ट्री में काम करता था, आईटी इंडस्ट्री में काम करते हुए उसको किसी ने बोला कि अगर तुम इसके बदले, फॉर एग्जांपल कंपनी का नाम बना लेते हैं पेप्सी कोला, तुम पेप्सी कोला में अगर एक रूट ले लो, उस रूट के लिए एक ट्रक रख लो और एक ड्राइवर रख लो, तो जितने घंटे तुम कंप्यूटर के सामने बैठ के कमाते हो उससे ज़्यादा पैसे कमाओगे और ट्रक तुम्हारा ड्राइवर चलाएगा। सो उसने एक रूट ले लिया, अपनी आईटी इंडस्ट्री की जॉब छोड़ दी, ट्रक ले लिया, ड्राइवर रख लिया, उसकी कमाई अच्छी हुई और उसको टाइम ज़्यादा कंप्यूटर के सामने बैठने वाला लगाना नहीं पड़ा। इसमें उसको एक बात और समझ में आई, अगर दूसरा रूट भी मैं ले लूँ, नॉर्थ के बदले साउथ वाला भी ले लूँ, एक और ड्राइवर रख लूँगा, एक और ट्रक रख लूँगा, अल्टीमेटली ही केप्ट 4 ट्रक्स और 4 ड्राइवर के साथ उसकी कमाई 4 गुना हो गई और उसको खास काम नहीं करना पड़ता था। लेकिन करते करते उसको अचानक किसी ने बताया पेप्सी कोला में एक और भी टेंडर निकल रहा है, अगर उस काम को करने के लिए तुम 4 ट्रक बेच दो, अपना मकान भी बीच में लगा दो, अपने बाप से भी कुछ पैसा लेके लगा दो, अगर उसका लाइसेंस तुम ले लो और उसका ऑर्डर ले लो तो तुम्हारी कमाई और ज़्यादा हो जाएगी और तुमको ड्राइवर से भी डील नहीं करना पड़ेगा, तुम और ईजी हो जाओगे। सो दिस मैन, सपोज उसका नाम रखते हैं विजय, विजय ने ये काम कर लिया, 4 ट्रक भी स्टेक पर लगा दिए, राइट। अब विजय क्या लिखता है, एक दिन पार्किंग लॉट में मैं अपनी कार बार बार घुमा के देख रहा हूँ कि मैंने कार पार्क करने के लिए जगह कहीं मिले तो वहाँ रख दूँ, पर बहुत सारी कारें घूमती जा रही हैं और पार्किंग के लिए जगह ढूंढ रही हैं। अचानक मुझे नज़र आया वहाँ पर एक स्पॉट खाली हुआ, मैं अपनी कार को जल्दी जल्दी वहाँ पर चला के लेके गया और द मोमेंट मुझे राइट टर्न करके वहाँ पार्किंग में खड़ा करना था, मैं हार्डली 2 इंच उस तरफ अपनी कार को मोड़ा तो पीछे एक कार आ रही थी, उस कार वाले का भी स्पॉन्टेनियस बिल्कुल वहीं पर वैसे ला के पार्किंग करने का चांस था और मैंने अपनी कार घुमा ली, क्योंकि मेरा फ्रंट व्हील उस तरफ था, उसने बैक करके डालनी थी, उसको टाइम लगना था और मैंने कार पार्क करने के लिए वहाँ डाल दी। उस कार वाले ने मुझे रियलाइज़ कराया, आंखों आंखों से हम दोनों की आंखें मिली, हम दूसरे ने एक दूसरे को देखा, देखने के बाद उसने मुझे रियलाइज़ कराया तुम जीत गए, पार्किंग तुम ले गए, ओके गो अहेड। और मैंने भी उसको रियलाइज़ कराया इसमें मेरा ही हक था क्योंकि मैं पहले पहुंचा हूं और मैंने पार्किंग ले ली। यू नो दिस वाज सैटरडे एंड ऑन मंडे व्हेन ही वेंट टू हैव दैट पेप्सी कोला का टेंडर लेने के लिए जिस बंदे ने उसके लिए उसको सैंक्शन करना था, बाई चांस ही एंटर्ड इनटू दैट रूम और सैंक्शन करने वाला ये वही इंसान था जिसकी पार्किंग इसने ली थी। विजय लिखता है कि उसके बाद मेरे 4 ट्रक तो क्या बनने थे, मैं रोड पे आ गया क्योंकि मुझे वो टेंडर नहीं दिया गया। ये मैंने स्टोरी इतनी ही पढ़ी है। इसके बाद मैं बड़ी देर ये सोचता रहा कि विजय बोलता है काश मैंने उसको पार्किंग दी होती। दैट इज एम्पैथी, दैट इज अल्ट्रुइज्म, दैट इज टेंडरनेस। वो एक प्रैक्टिस से आती है कि मैं कैसे लूज कर सकता हूं तुम्हारे लिए। लेकिन मैंने बाद में सोचा इसके तो 100 पॉइंट बन जाएंगे कि मैं विजय से पूछूं अगर तू पार्किंग पहले कर ली है और तू शॉपिंग करके जल्दी घर चला गया है तो जाके तू टेबल पे बैठ के चाय ऑर्डर करेगा वाइफ को और ज़्यादा से ज़्यादा टीवी देखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अखबार पढ़ेगा,
ज़्यादा से ज़्यादा किसी होटल में जाके तू पिज़्ज़ा ऑर्डर करके बैठ जाएगा, तू करेगा क्या? तेरे को ये नहीं पता कि मैंने अगर जल्दी से पार्किंग ले भी लिया है तो इस टाइम को सेव करने के बाद मैंने इसको जुडिशली दूसरों के भले के लिए कैसे यूज़ करना है। अगर इस टाइम को सेव करके मैं दूसरों को भला करूँगा तो एट प्रेजेंट मुझे चांस मिल रहा है कि लाखों करोड़ों का चेक कैश करा लो कि इसको पार्किंग में दे देता हूँ। उसको बोलते हैं मैं बहुत बिजी हूं लेकिन मैं बिल्कुल वेला हूं। मैं इतना वेला हूं कि मैं आपको पार्किंग दे सकता हूं। और विजय बोलता है काश मैंने पार्किंग दी होती तो आज पेप्सी कोला का वो बड़ा ऑर्डर मुझे वो दे देता। ये पॉइंट हमको ना डेली करने से समझ में आता है। जिस दिन मेरे पास लाखों होंगे और मैं दूसरों को दे सकता होऊंगा तब मैं उस दिन करूंगा, तो फिर ये बात कभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि गरीब से गरीब माँ भी ये प्रैक्टिस घर में डेली करती है। शी इज़ नॉट सेइंग कि मेरे पास सारी कैपेसिटी और फैसिलिटीज़ होंगी तब मैं अपना अल्ट्रुइज्म वाला कैरेक्टर जीऊंगी। शी डज, है ना। हर सब्जेक्ट में माँ को बीच में ले आओगे ना तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू निधि जी। नमस्कार वीर जी। नमस्कार जी। मेरा नाम रश्मि वधवा है। रश्मि, हाँ जी सर। जी सर, हम सुबह से एम्पैथी, सिंपैथी और ये बातें कर रहे हैं। हमने सीखा कि एक टेंडरनेस इंसान में होनी चाहिए, तभी वो दूसरे को अपने समान मान सकता है और आगे बढ़ सकता है उसको रखते हुए। पर एक एज अ स्टूडेंट या एक इंसान के तौर पे कई बार क्रिटिसिज्म या आलोचना जिसे हम कहते हैं उससे संभाल पाना मुश्किल हो जाता है। सिंपैथी होनी चाहिए और क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करने की एक शक्ति होनी चाहिए, वो कैसी लाई जाए? वाह, रश्मि जी का क्वेश्चन बहुत कीमती है। हम सबके साथ रोज़ होता है। जो कुछ भी हम काम करते हैं ना उसमें हमको क्रिटिसिज्म मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने जिस तरीके से किया है वो दूसरे की नज़र में परवान नहीं है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा थैंकलेसनेस कहाँ आती है? जहाँ हम दूसरों का भला करते हैं, भला लेने वाला तुम्हारे साथ थैंकलेस हो जाता है। थैंकलेस ही नहीं हो जाता, तुमको क्रिटिसाइज भी करता है। राइट? फॉर एग्जाम्पल, मेरे दोनों हाथ बंधे हुए थे, उसने आके मेरे मुंह में चम्मच डाल दी। मैं भी यही डिमांड सोच रहा था, मन में ख्वाहिश कर रहा था कि काश वो मेरे मुंह में आके चम्मच डाल दे। और बाद में मैंने पता क्या कहा? उसने चम्मच जब डाली तो चम्मच आधी उसमें से गिर गई थी, उसको चम्मच डालनी नहीं आई। या उसने चम्मच राइट हैंड से क्यों डाली, लेफ्ट से क्यों नहीं डाली? मेरे कपड़े खराब कर दिए। एग्जाम्पल बनाया मैंने। हम जब भी भला करेंगे हमको उसका क्रिटिसिज्म मिलेगा। अगर मैं सोचूं मेरे को वाह वाह मिलेगी तो हम भला नहीं कर सकते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर क्रिटिसिज्म। और जो काम करता है उसी का क्रिटिसिज्म होता है, जो करता ही नहीं जो काउच पोटैटो है, जो टीवी के सामने बैठ के रिमोट कंट्रोल मूव किए जा रहा है और आप उसको पकी पकाई सामने रख रहे हैं, वो तो कुछ कर ही नहीं रहा, वो तो फिर सिर्फ क्रिटिसाइज ही करेगा ना। ये टीवी चैनल पे आज क्या गया है, टीवी वाले दिखा क्यों नहीं रहे, लाइट चली क्यों गई है, एयर कंडीशन ऑन क्यों नहीं हो रहा है, ये रिमोट कंट्रोल को क्या हो गया है, ये आज रोटी क्या बनाई है, क्रिटिसाइज ही करेगा। तो अब हम जब ऑफिसेज में काम करते हैं, हमारे बॉस भी हमको क्रिटिसाइज करते हैं। वो क्रिटिसिज्म को मैंने ये सीखना है कि इसने मेरी डिग्री को, मेरे परिवार को, मेरे कैरेक्टर को गाली नहीं निकाल दिया, इसने सिर्फ मेरे को इम्प्रूव करने के लिए बताया। दैट्स इट, वेरी सिंपल। सारा क्रिटिसिज्म का जितना पहाड़ था खत्म हो गया। एकदम से पूरी स्नो एवरेस्ट की पिघल गई सारी, है ना। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर क्रिटिसिज्म। हमारे में से कोई भी किसी को अगर कुछ कहता है, वो उसको अगर क्रिटिसिज्म लगता है और उसको चुप जाता है, तो फिर मेरे को चाहिए कि मैं किसी का भी गलती निकालने के लिए उसको अल्ट्रुइज्म से, एम्पैथी से इतने प्यार से कहूँ कि उसको माइंड ना हो, उसको हर्ट ना हो, उसको क्रिटिसिज्म लगे ही ना। राइट?
थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। वीर सिंह जी, मेरा नाम अनुपमा है, मैं यहाँ पढ़ाती हूँ, फैकल्टी हूँ। क्या नाम है? अनुपमा। अनुपमा, वाह। और मैं यहाँ पढ़ाती हूँ। क्या पढ़ाते हैं? कोर्सेज पढ़ाते हैं, हेल्थ एंड हॉस्पिटल दोनों में। अच्छा। क्वालिटी, इंटरनेशनल हेल्थ, इस तरह के कोर्सेज पढ़ाते हैं। एक तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने एल्ट्रिज्म की बात की। मैं तो सोचती हूँ ये कोर्स करिकुलम में एक चैप्टर होना चाहिए। ओह वाह, थैंक यू। एंड आज का ये सबसे बड़ा सवाल है, वैल्यू इन यूथ। बहुत बड़ा सवाल है और इस पे मेरे ख्याल से दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ भी बहस कर रही है कि करिकुलम शुड बी रिवाइज्ड एंड वैल्यू शुड बी इंक्लूडेड। पर मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसा एक हम अडेज कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा वो घर में माया, तो आप पैसे को कितनी अहमियत देते हैं? पैसे को क्या वैल्यू देते हैं लाइफ में, कि उसकी क्या वैल्यू है लाइफ में? ये मेरा सवाल है। पैसे की हमारे जीवन में अगर हम जो नीड्स को देखें आज के सिस्टम के मुताबिक तो बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर मेरे पास पैसा होगा ही नहीं तो मैं हर पड़ाव पे पैसा ना होने के कारण दुखी रहूँगा। आप दुखी रहूँगा, मेरे परिवार वाले दुखी रहेंगे। तो इसका मतलब मुझे अपने काम करने में इतनी मेहनत करनी चाहिए, इतना स्ट्रेस लेना चाहिए कि मैं एम्पल ऑफ मनी कमा सकूं। लेकिन इसको कमाते कमाते मैं एथिक्स और वैल्यूज़ और मोरालिटी और ये सारे पॉइंट्स ना भूल जाऊं। वो मेरे साथ रहेंगे, मेरे पास चाहे पैसा है चाहे नहीं है। मेन पहला पॉइंट ये रहेगा कि मुझे एम्पैथी, अल्ट्रुइज्म जीना है, टेंडरनेस का जीना है ना। फॉर एग्जाम्पल, मेरी माँ की नींद बहुत कच्ची है। जब हम बचपन में थे तो हमारी चप्पल की आवाज़ से उनकी नींद खुल जाती थी, इसलिए हमने एक प्रैक्टिस सीखी नानी से। नानी जी बोले चप्पल को उतार के उंगलियों के बाहर ऐसे, जैसे बैले डांसर चलती है, ऐसे चलने की प्रैक्टिस करो तो क्या होगा, तेरी माँ की नींद नहीं खुलेगी। सेकंड, अगर तूने चप्पल फ्लिप फ्लॉप वाली वो पहनी है तो वो पीछे बार बार ऐसे बजती है, तो या तो उसको पहन के उसकी प्रैक्टिस ऐसे करो। थर्ड, अगर कोई मेहमान आया है, उसने डोर नॉक किया तो माँ की नींद खुल जाएगी। अगर नहीं खुली नॉक करने के बाद तो उसकी कुंडी को जब हम खोलते थे तो जोर से वो ठक होकर नीचे बजती थी। इस कुंडी को आस्था से अगर खोलेगा तेरी माँ की नींद नहीं खुलेगी। ये एक बहुत छोटे छोटे ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल हैं जो नानी या माई फादर हमें समझा रहे हैं कि ऐसे इसकी नींद नहीं खुलेगी, क्योंकि उसकी नींद कच्ची थी। अब हम जब हमने वो वाली प्रैक्टिस की तो आज हम बड़े हो गए, हम अमेरिका पहुंच गए, हमारे पास बहुत सारे पैसे आ गए, तो आज वो आदत ही बन गई है। अगर कोई भी इंसान सोया हो तो हम ऊंचा नहीं बोलते हैं, प्रैक्टिस बचपन में की थी, राइट। पर अगर मैं बोलूं कि पैसे की वैल्यू ज़्यादा है तो मैं, माँ मेरी सो रही है, कोई भी इंसान सो रहा है, चाहे मेरी पत्नी, चाहे मेरा बच्चा, चाहे कोई भी दुनिया का इंसान, और मैं फ़ोन उठा, हेलो कितने पैसे, ये वो, पैसे की बहुत वैल्यू है, तुमने कम मेरे को क्यों दिया, चेक क्यों नहीं कैश हुआ, तो मेरे ये जो वैल्यू है ना दिमाग में कि मेरे को अपनी डील किसी तरह बनानी है, और ये जो सो रहा है इसकी परवाह नहीं कर रही। एग्जाम्पल ये है एक, ऐसे पैसे की वैल्यू तो है, लेकिन उसके बदले में अगर मैं दूसरों की गर्दन मरोड़ देता हूँ तो इस पैसे के वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है, क्योंकि इसने मुझे रास्कल बना दिया, करेक्ट। तो बड़ी सारी दुनिया पैसा कमाते हुए ये परिवार का प्यार और आपस में मिलवर्तन, हमदर्दी, नम्रता भूल जाती है। उसको बोलते हैं द्वारे द्वारे स्वान जो डोलत। जैसे कुत्ता एक एक द्वार पे डोलता रहता है, ऐसे मैं एक एक पॉइंट के ऊपर अपना बल हार जाता हूँ। अपना बल ऐसे बात बात पर हार जाना मुझे रास्कल और डॉग की प्रवृत्ति में ले जाता है और मैं अपना कैरेक्टर भूल जाता हूँ। पैसे की वैल्यू तो है,
बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। लेकिन मेरे को अल्ट्रुइज्म, पैसा है या नहीं, दोनों किस्मों के जीवन में जीना ही पड़ेगा।